Hello friends, this is Devendra Jain. Uh, Today I am going to explain how to import data from Excel to Tally. So let's start with the process. This is a simple process. There is no need of any professional knowledge or any software expertise or any programming expertise. It's a simple process where we take data from Excel, make multiple copies through Word, and then import it with XML to Tally. So let's start with first of all, I have opened a Tally, and in this Tally I'll pass a trial entry. Suppose I have received this data of sales wherein the 12% of sales has been received from the customer. This is data being made by me. So I have received this data, but remember this process only can be used the data where the data means where the sales entry are to be recorded only in one account. For example, जैसे मुझे सिर्फ संडे डेटर्स को सारे सेल्स की एंट्रीज हिट करनी है, या फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के मंथली एंट्रीज मारने की है, या फिर बहुत परचेजेस मुझे सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स को डालने के, तो वहाँ पे मैं ये वाली प्रोसेस यूज़ करूँगा. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. एक सैम्पल एंट्री मारूंगा सबसे पहले टैली में. F9 F8 फॉर सेल्स, F8 for sales. So control V. Let's start with April. Alt C sundry daters account. This will go to sundry daters account. Enter and more. Enter. 500 rupees to Alt C GST sales at the rate 12% sales. Alt C divided by 1.12 to Alt C GST at the rate 6%. Duties and taxes. Alt C plus 6%. Sample. So I have made an entry. Now I'll export this entry. So just open the entry, press Alt T, and here remember to export it in XML format. So this is very important. End home try. Now as I have exported the entry, so it will be in the tally folder. So where it is trial.xml. Control C. I'll just paste it in my import folder. Control V. Now open this. So herein I'll just give a glimpse of it. Don't worry, there is no need for you to understand this HTML. Just remember that every time we pass an entry, there is this big HTML code for one entry in Tally. So what are we going to do is copy this code and make multiple copies of this code using Word, so that and just change the amount. But remember, every time
when we make a multiple copies, just copy from tally message to tally message. Don't copy the other part. So I'll just copy this tally message to tally message. Control C, and I'll paste it in Word. Word. So done. And remember one more thing, that when we pass an entry in Tally, there is this voucher remote ID which the Tally creates uh, every time different remote ID for different vouchers. So don't we are not gonna instruct Tally that use this voucher ID. We will tell Tally to make your own voucher ID. I'll just remove what voucher ID is there. So these two things are to be removed: voucher ID and GUID. This I'm gonna tell Tally that you make your own voucher ID. You make your own GUID. I don't care what you voucher ID is being used. I'm just focused on the sales data that should go into Tally. So first of all, when we receive, now we'll just make some formatting in this Excel, so that we don't get errors in while importing. So let's start with the first of all, this date column. Remember, the you can see this date is in some other format like month, day and year, but when we exported the data from Tally to XML, the data is in the format of YY, YY. So what I'm gonna do is make this format into text, and the text should be in that format what HTML, what XML is required. So plus the formula for that is text, and select the cell, comma, I'll type the format YY, DD, MM. I did this DDMM because this version of Excel is counting as this 4 as date and this 6 as month. So I typed it like this, but you can change it as you want. If your Excel version is recognizing 4 as 4 as month and 6 as date, so you can change this format as per your requirement. So I got it. Okay, sorry, there is some Excel problem. I'll again change it. MMDD. So I got it. 0604/2019. Huh? So copy paste the formula, Control C, and paste it again in our original column. And now remember, this all cells are converted to text format. You can check this. There's a formula plus is text. If this comes true, then the cell has text format. And now all these columns, what we have done is, look at this: 20910 CGST 1254.6 1254.6, but this 123420 is being rounded off. So what we are going to do is, we'll put one formula, one calculation here. This plus and minus this, so we'll get all differences. And now I got this column as a round off column. And one thing is there, that whenever the numbers are stored in Excel, I'll say this in Hindi,
जब भी नंबर सेव होते हैं ना इसमें टेक्स्ट एक्सेल में, तो वहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट के आगे जो डेसिमल्स रहते हैं वो कम से कम मतलब कुछ 10 to 15 डिजिट्स तक डेसिमल्स जाते हैं। अपन को यहाँ पे नहीं दिखता है, ये जो समझो यहाँ पे 1 to 5 यहाँ पे सिर्फ 0.6 दिखेगा, बट इन द बैक मेमोरी इसकी वैल्यू जो रहती है वो बहुत लंबी रहती है, 0.49 करके ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे जो नंबर्स है इनको सबको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे कि 0.00 ये फॉर्मेट में मुझे सारे टेक्स्ट दे दे करके। तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा प्लस टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको लिया, कॉमा बैक 0.00 क्लोज। तो ये मेरा अभी 0.00 के फॉर्मेट में टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। सो आई कॉपी, कंट्रोल सेम मुझे सारे कॉलम्स के लिए रिपीट करने का, तो रिपीट करना पड़ेगा। आई ऐड एक्स्ट्रा कॉलम इन ऑल दैट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब एक और बात बताता हूँ इधर, इसमें क्या होता है कि जब भी अपन टैली में से डेटा एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो टैली को डेबिट क्रेडिट कैसे समझता है। टैली के लिए डेबिट मतलब, अब देखो अपन ने संडे डेटर्स को डेबिट किया है, तो टैली के लिए डेबिट मतलब निगेटिव वैल्यू, और टैली के लिए क्रेडिट मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो अपन इधर भी वही करेंगे, अपन को जो क्रेडिट करना है, टैक्सेबल वैल्यू क्रेडिट होगा, सीजीएसटी क्रेडिट होगा, एसजीएसटी क्रेडिट होगा, तो ये सारे पॉजिटिव में ओके, तो नो प्रॉब्लम। अब जो ये वाला कॉलम है, ये वाला इधर क्या है, ये सारे अपन को क्या करना है, कॉलम में ये सारे नेगेटिव करने के। तो क्या करेंगे अपन, इसको एक और कॉलम इंसर्ट करता हूँ, सारे कॉलम्स बाद में डिलीट हो जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग मैं सब अभी के लिए एक्स्ट्रा कॉलम्स बना के काम करता हूँ। ये एक्स्ट्रा कॉलम बना, कंट्रोल मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी वैल्यू, और सेम मेरा इधर टेक्स्ट वाले कॉलम में भी मेरा चेंज हो गया है। और जो राउंड ऑफ वाला कॉलम है, राउंड ऑफ वाले कॉलम में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया फॉर्मूला में, इधर मैं इसको प्लस कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि डेबिट में 20910 जाएगा, ये क्रेडिट में 20910 जाएगा, 1254.6 जाएगा, 1254.6 जाएगा, और डेबिट में जाएगा 23420। तो मेरा जो राउंड ऑफ है वो डेबिट में जाने चाहिए कि क्रेडिट में जाना चाहिए, इसके हिसाब से तो ये डेबिट में जाना चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब ये बराबर है। तो फिर सेम फार्मूला में इसको कंट्रोल डी कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। एक और बात अभी, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने टेक्स्ट में लगा है ना, जो टेक्स्ट में मेरा जो डेटा है वो मुझे टेक्स्ट मतलब वो रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लेना है। आई विल कॉपी एवरीथिंग, कंट्रोल से, कंट्रोल अल्ट वी वैल्यू, ये कॉलम के लिए कंट्रोल से, कंट्रोल अल्ट वी वैल्यू, ये कॉलम के लिए कंट्रोल से, कंट्रोल अल्ट वी वैल्यू, ये कॉलम के लिए कंट्रोल से, कंट्रोल अल्ट वी वैल्यू, ये कॉलम डिलीट, और फिर वापस ये वाला कंट्रोल से, कंट्रोल अल्ट वी वैल्यू, ये कॉलम डिलीट। अब अपन को अमाउंट का जो स्ट्रक्चर है ये हो गया फाइनल। पर इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखो, इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर्स ये सारे मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये मुझे नंबर्स फॉर्मेट में नहीं चाहिए। जैसे मैं इसको नंबर फॉर्मेट में करूँगा तो एक्सेल क्या करेगा कि उसको 0.9999 वाले फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, मुझे स्पेसिफिक सिर्फ 2 डिजिट्स वाला ही चाहिए। क्योंकि एक्सेल में क्या, एक्सेल में सॉरी कंट्रोल से,
एक्सेल में मैक्सिमम 4 डिजिट्स अलाउड है, सॉरी टैली में मैक्सिमम 4 डिजिट्स अलाउड है। टैली में 4 डिजिट्स के डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स के ऊपर तुम फिगर पंच नहीं कर सकते। तो अभी मुझे अभी अमाउंट फिक्स हो गया। अब मेरा बचा इसमें कि जो लेट हेड्स है, मतलब अकाउंट हेड्स, वो अकाउंट हेड्स चेंज करने। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये जो एंट्री अभी जो मैंने सैम्पल एंट्री करी थी, अब जो सैम्पल एंट्री करी इसमें जो अकाउंट हेड है मेरे पास वही अकाउंट हेड के डेटा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं अकाउंटेड नहीं चेंज करूँ और उसको वैसे रहने दूँ और सिर्फ अमाउंट चेंज करूँ। जो मेरी जो एक्सएमएल एंट्री है ना, मैं उसमें सिर्फ अमाउंट चेंज कर सकता, तो सिर्फ अमाउंट चेंज करने से भी हो जाएगा। और अगर समझो कि तुम्हारे यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स है, मल्टीपल कॉलम्स है, तो वहाँ पे तुम ये जो अकाउंट हेड्स है, ये वाले जो हेड्स है, ये तुम हर कॉलम के पहले वो ऐड कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग कॉल वो भी चेंज करवा सकते हो। बट मुझे क्या है, मुझे ये एंट्री में मुझे अकाउंट हेड नहीं चेंज करना, मुझे सिर्फ अमाउंट चेंज करनी है और अमाउंट के मल्टीपल कॉपीज बनाने, क्योंकि मेरा अकाउंट हेड में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अभी मेरी ये एक्सेल ये मेरी फाइनल हो गई। आई जस्ट सेव दिस एक्सेल। और यहाँ पे एक मेलिंग फीचर रहता है। अब समझो अपन को क्या करना है कि एक अपन ने मेल ड्राफ्ट किया है कि सो एंड सो मिस्टर देवेंद्र जैन, योर ड्यू इज रुपीज 50,000 एंड यू हैव टू पे दिस अमाउंट बाय 25th ऑफ मे। सपोज मैंने ये स्टेटमेंट बनाया और मुझे ये स्टेटमेंट हर मेरे क्लाइंट को मेल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये एक स्टेटमेंट मेल इधर मैं लिख दूंगा एक वर्ड में, और वो मेल की मल्टीपल कॉपीज़ बनाऊँ, वो स्टेटमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाऊँगा यूजिंग दिस मेलिंग फीचर। और इसमें सिर्फ मैं उसको क्या बोलूँगा, जहाँ पे देवेंद्र है वहाँ पे मेरे पास लिस्ट है क्लाइंट की, देवेंद्र के जगह पे नाम वहाँ से उठाने का, अमाउंट के जगह पे अमाउंट वो लिस्ट से उठाने का, और ड्यू डेट के जगह पे भी ड्यू डेट वहाँ से उठाने की। तो आई जस्ट चेंज मीन्स यूज दिस मेलिंग फीचर फॉर एक्सेल टू टैली। सो यहाँ पे ऑप्शन होता है मेलिंग्स के अंदर होता है सिलेक्ट रेसिपेंट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। जस्ट कॉपी द लिस्ट पाथ ऑफ फोल्डर, ये पेस्ट किया सेल्स डेटा, और ये शीट मेरी यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर इंसर्ट वर्जन है, यहाँ पे मेरे वो कॉलम्स आ गए सारे के सारे। तो अभी ये डेट की जगह पे मुझे क्या चाहिए, मुझे डेट का कॉलम चाहिए, डेट का कॉलम। फिर नीचे देखो, नीचे जाओ यहाँ पे इफेक्टिव डेट रहेगा, इफेक्टिव डेट भी मैं चेंज करूँगा। रिमेंबर मैंने ऊपर लेजर नेम नहीं चेंज किया क्योंकि मेरा लेजर नेम सन्डे डेटा से रहने वाला है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सन्डे डेटा। फिर एक और नीचे जाएंगे अपन, अभी अमाउंट चेंज करना है अभी अपन को। डेट तो मैंने चेंज कर दी, जस्ट चेक दिस आउट। जहाँ पे अमाउंट है, अब यहाँ पे अमाउंट आ गया मेरा, अमाउंट मैंने चेंज किया। टैक्स ऊपर ये मेरा टोटल वाला अमाउंट है, सन्डे डेटर्स को कौन सा अमाउंट हिट करेगा तो वो वाला अमाउंट था। फिर जीएसटी सेल्स 12% को मेरा टैक्सेबल वैल्यू हिट करेगा, तो मैंने वहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू नाम दिया है, तो यहाँ पे मेरा टैक्सेबल वैल्यू आएगा। सीजीएसटी के जगह पे मुझे सीजीएसटी परसेंट ऐड होगा, तो सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी में एसजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट, और राउंड ऑफ में मेरा राउंड ऑफ का कॉलम तो वैसे ही बनाया मैंने, तो राउंड ऑफ की जगह पे राउंड ऑफ वाला कॉलम, सॉरी कुछ तो गलत हो गया। ओके, और अभी फिनिश एंड मर्ज एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स ऑन हो। जस्ट चेक दिस आउट, इधर मेरे मल्टीपल कॉपीज बन रहे हैं। अभी मेरे 150 एंट्रीज है, तो उतने यहाँ पे पेजेस बढ़ते जा रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने हो गए, वहाँ पे मेरे 3 पेजेस थे, यहाँ पे 3 पेजेस के 447 पेजेस हो गए।
जस्ट कॉपी कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और जो मेरा ये XML वाला है, यहाँ पे जो मेरा डेटा है ये पूरा मैं हटा के कंट्रोल V पेस्ट कर दूंगा, और अभी यहाँ पे मेरा पूरा सारे एंट्रीज का डेटा आ गया है। कंट्रोल S, अब मैं टैली में इंपोर्ट करूँगा इसको डेटा को। टैली में इंपोर्ट करते वक्त जो पाथ रहता है वो विथ फाइल नेम कॉपी करना पड़ता है, तो कॉपी दिस कंट्रोल C, इंपोर्ट डेटा वाउचर्स, कंट्रोल एंड एंटर। हाँ, तो अपना क्या मैं एक्चुअली थोड़ा थोड़ा कुछ काम आया था, सॉरी। यहाँ पे एक एरर आया था, उसके लिए मैंने बीच में पॉज किया था, तो मुझे इंपोर्ट करते वक्त एरर आया। अभी इंपोर्ट करते वक्त अगर एरर आता है तो अपना जो टैली 9 रहता है ना, मतलब जहाँ पे भी जो भी तुम्हारा टैली 9 का जो फोल्डर रहेगा मेन, जहाँ पे exe फाइल रहती है, तो वहाँ पे एक tally.imp करके एक फाइल होती है, तो मैं वहाँ पे चेक करने गया था कि मुझे प्रॉब्लम क्या आया करके। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वाउचर टोटल्स डू नॉट मैच 23 420 23 419.2 1.6। तो यहाँ पे मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा डिफरेंस आ रहा वाउचर के टोटल में। तो मुझसे क्या गलती हुई कि जो राउंड ऑफ है वो माइनस रह गया था मुझसे, तो मैंने सबको फॉर्मूला लगा के मैंने पूरा चेंज किया, मैंने उसको प्लस किया, और प्लस करके मैंने पूरी प्रोसेस वापस रिपीट की, और वापस से ये सारे वापस से इधर सब डेटा लिया। फाइल अगेन इम्पोर्टेड, मुझसे जो गलती थी वो उसके लिए सॉरी, बट वापस अभी मैं वापस से इम्पोर्ट करने का ट्राई करूँगा वाउचर्स। सो इट्स वेरी सिंपल, डिस्प्ले डेबुक Alt F2, और मेरे नीचे 127 प्लस इधर के बाकी के एंट्रीज। तो मेरी सारी एंट्रीज विथ ऑल डेटा आ गया है, और सब में मेरा नरेशन सैंपल ही है। एक और बात, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर सकते हो, नरेशन। किसी किसी के फॉर्म में रहता है कि नरेशन में नाम डालना है कि किसने एंट्री करी, तो यू कैन राइट योर नेम हियर एंड देन इन अवर दिस डॉक्यूमेंट दिस वर्ड फाइल, यहाँ पे एक नरेशन करके रहता है, ये नरेशन। तो यहाँ पे सैंपल के जगह पे वो नरेशन वाले कॉलम को, नरेशन का कॉलम का रेफरेंस दे देना। सेम वैसे सेल्स वाउचर है, तो तुमको अगर एक ही टाइम पे मल्टीपल वाउचर्स इंपोर्ट करने के, जर्नल भी, परचेज भी, रिसीट पेमेंट, तो सेल्स के जगह पे वाउचर का कॉलम का रेफरेंस देना। लेजर के वहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि लेजर के वहाँ पे भी नाम चेंज करना हो तो तुम रेफरेंस दे सकते हो। मेरे यहाँ पे अभी मुझे कैसा था कि सिंपल एक ही एंट्री के मल्टीपल कॉपीज थे, सिर्फ अमाउंट चेंज था, तो मैंने नाम वही रहने थे, बस अमाउंट चेंज करता गया। अगर नाम रहता तो मेरा कैसा रहता बता देता हूँ कि नरेशन के जगह पे, सॉरी, मेरा टैक्स वैल्यू के जगह पे एक और कॉलम रहता मेरा हेड, सॉरी, लेजर, और उसको डेबिट वाला लेजर कौन सा, तो यहाँ पे रहता समझो देवेंद्र विजयन, फिर और कोई समझो प्रतीक, संजय, और कोई अलग अलग नाम होते। बट रिमेम्बर एक ही चीज़, अगर यहाँ पे तुम नाम डाल रहे हो तो ध्यान रहना चाहिए कि जितने नाम यहाँ पे विथ स्पेलिंग ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे एक स्पेस भी ये मिसमैच नहीं होना चाहिए तुम्हारे टैली के नाम से। सारे के सारे लेजर पहले से टैली में बनी हुई रहनी चाहिए, मास्टर्स पहले से टैली में बनी हुई रहनी चाहिए, और नाम बिल्कुल सेम रहना चाहिए, तभी ये नाम वाला जो रहता है वो मतलब चलता है। अगर तुम थोड़ा सा भी नाम में स्पेलिंग एक भी इधर उधर हो गए तो तुमको
tally.imp में पता है कहाँ पे एरर आने वाला है। और यहाँ पे देखो जब एरर जब भी आता है तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ रहता है इंपोर्टिंग डेटा एट 11:08 में भी आज इंपोर्ट करो 11:08 को, तो यहाँ पे टाइम और डेट सब आता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें किसी को भी कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशंस अगर रहे तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आई डी J Devendra 6509 @gmail.com. You can contact me on this mail ID and just put a mail on that mail ID कि आपको कहाँ पे एरर आ रहा है या इसमें ये प्रोसेस में कहीं पे भी दिक्कत आ रही तो मुझे मेल कर सकते हो। एंड प्लीज़ यूज़ दिस प्रोसेस, डोंट मतलब कैसा है कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस एक मैनुअल एक छोटा सा कॉपीज बनाने का प्रोसेस है, कंट्रोल से कंट्रोल भी है, तो बहुत इजी हो जाता है। तुम इसको बैंक स्टेटमेंट की एक ट्रिक होती है कि बैंक स्टेटमेंट की हर एंट्री करने जाते हैं ना तो डेट, अमाउंट, फिर अकाउंटेड वगैरह वो सब एक एक चीज़ देख देख के डालना पड़ता है। तो उसको समझो 1000 एंट्री से बैंक की कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। दिन की 100 एंट्री मारी, कितना है फास्ट आदमी, दिन की 100 एंट्री मारी तो 10 दिन लग जाएंगे। बट वही मैं क्या करूँगा कि मैं सारी की सारी एंट्रीज डेबिट क्रेडिट जो भी है, बैंक एक साइड बैंक को डेबिट क्रेडिट होगा और एक साइड को मैं सस्पेंस अकाउंट, मतलब क्या होता है नाम चेंज होते रहते हैं ना, तो नाम में मिस्टेक्स हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा एक साइड सारे एंट्री सस्पेंस में ले लूँगा और फिर सस्पेंस में जब एंट्रीज आ जाएगी तो मुझे क्या करना, मुझे स्टेटमेंट देखने की जरूरत है, मैं सिर्फ सस्पेंस में लेते हैं नरेशन के साथ सस्पेंस में लूँगा और सस्पेंस की जो भी सारी एंट्रीज रहेगी मेरी एक एक एंट्री ओपन करके सस्पेंस क्लियर करना। तो जहाँ पे मुझे 10 दिन लगने वाले वहाँ पे 2 दिन, एक दिन सस्पेंस क्लियर करना, सॉरी 1.5 दिन सस्पेंस क्लियर करना और आधा दिन टैली में एंट्रीज इंपोर्ट करना। तो 10 दिन का काम 2 दिन में होता है एंड बिलीव मी ये हो सकता है, हमने किया है, हमारे ऑफिस में किया है, प्रैक्टिकली किया है और ये प्रैक्टिकली अप्रोच है, मैंने बहुत सारी एंट्रीज ऐसे इंपोर्ट करी है तो हो सकता है। सो दिस इज देवेंद्र साइनिंग ऑफ। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट on my channel on this video. So thank you and share this with all your CA course, CA fraternity students. So thank you very much.